Hello student, in this lecture I will be teaching you a new lesson, that is lesson number 18, page number 44, weeds in the garden. Now here weeds means useless plant harmful for desired vegetation. Okay. So first of all I will tell the summary of this lesson. The story Weeds in the Garden tries to bring out the importance of correcting children and imbibing good habits at the right time. Anshuman in this story developed bad habits. His parents tries their best to advise him to get out of it, but in vain. His parents get a chance to correct him when they go to stay on his grandfather's farm. While taking a walk on the farm, Anshuman's father points out to the weeds growing between the plants. He explains to Anshuman how these weeds are harmful to the plant on the farm. He tells him that if the weeds are not pulled out at the right time, its root would go deeper into the soil and thus destroys the plant. He compares the weeds to bad habits which should be pulled out before the roots grow deeper and destroy a healthy plant. In the same way, if we don't get rid of bad habits, in time it will be difficult to reform or change oneself and will destroy the person's character. Anshuman realizes his mistake and becomes a changed person. Now this was a summary of this lesson, Weeds in the Garden. Now I will read the lesson and I will be explaining to you the lesson. See student, most of the parents like to fulfill the wishes of their children. अभी हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों की जो भी कुछ विशेष रहते हैं वो फुलफिल करते हैं, जो चाहिए वो पेरेंट्स उनके बच्चों को देते हैं ना. They feel sorry when they cannot indulge their kids. Indulge means let someone have or do what they want. So and they feel sorry when they cannot indulge their kid or when they have to scold them. And when even a scolding has no effect, the parents become very very unhappy. Such was the case with Anshuman and his parents. देखो अंशुमन को उसके मम्मी पापा जो चाहिए वो देते थे, लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं कि कितना बार भी पेरेंट्स बोलने पर भी वो सुधरते नहीं है, वो उनको जो बिहेव करना है वही करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट पेरेंट्स बिकम्स वेरी अनहैप्पी. अंशुमन पेरेंट्स हैड नोटिस दैट ही वॉज डेवलपिंग सम बैड हैबिट्स. अंशुमन के पेरेंट्स को पता चला था कि ये थोड़ा कुछ बैड हैबिट्स इसमें अंशुमन में हो रहे. नेचुरली दे बिगैन टू वार्न हिम टाइम एंड अगेन, बट ऑल इन वेन. बार बार उसको समझाते थे लेकिन वो पेरेंट्स कुछ सक्सेस नहीं हो रहे थे. इन वेन मीन्स विदाउट एनी सक्सेस. अंशुमन जस्ट वुडंट लिसन. अंशुमन उनके पापा मम्मी पापा के सुनता ही नहीं था. ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही वॉज लेटिंग दोज बैड हैबिट्स गेट अ होल्ड ओवर हिम. गेट अ होल्ड ओवर मीन्स गेट कंट्रोल. Now he was out of control, so gentle word, strict warning, a scolding now and then. His parents tried everything short of beating him up, and that they would never do. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. उसके पेरेंट्स ने बहुत चाहा लेकिन वो कुछ सुधर ही नहीं रहा था, ना सुनता था ना कुछ करता था. हर एक तरह की उन्होंने कोशिश की. Then what happens is student, soon an opportunity presented itself. Anshuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. Early one morning, his father took him for a walk around the farm.
देखो एक दिन ऐसा आता है कि उसके पेरेंट्स अंशुमन को लेके उसके ग्रैंडफादर के फार्म पे जाते हैं और सुबह सुबह ही अंशुमन के पापा और अंशुमन मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते पड़ते हैं. He was describing the specialities of various plant and veins and bushes and trees to अंशुमन. अभी अंशुमन के पापा जब फार्म पे उसको घुमाने के लिए लेके जा रहे थे तभी so students see when his father took to अंशुमन to farm house वो जब वो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तो उसके पापा अंशुमन के पापा हर एक प्लांट्स की स्पेशलिटी बताते थे. फिर बुशेस के बारे में जो भी ट्रीज थे उनके बारे में अंशुमन को उसके पापा बता रहे थे. सडनली ही स्टॉप एंड पॉइंटेड एट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग नियर अ प्लांट. उन्हें देखा कि एक छोटा सा पौधा वहाँ ग्रो हो रहा है, मतलब वीड्स. तो अंशुमन दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट. अभी अंशुमन के पापा उसको बोलते हैं देखो एक वो छोटा सा सीडलिंग प्लांट्स वहाँ ग्रो हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो पुल कर सकता है. तो अंशुमन क्या करता है, उसको वो छोटे से पौधों को पकड़ के निकाल जाता है. अंशुमन हैड नो डिफिकल्टी इन पुलिंग ऑल ऑफ द स्मॉल सीडलिंग आउट. छोटे छोटे ये थे उसको अंशुमन ने निकाला है. गुड फादर गुड सेड हिज फादर एंड दे कंटिन्यूड विद देयर वॉक. छोटे से अनवांटेड वीड्स थे वो अंशुमन ने निकाले और फिर से वो लोग आगे निकल पड़े. आफ्टर अ वाइल दे केम अपॉन द सेम वीड्स बट देयर इट हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर. आगे चलने पर भी सेम वैसे ही पौधा निकले, लेकिन वो छोटा सा पौधा थोड़ा बड़ा हुआ रहता है. अंशुमन फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू. अंशुमन के पापा ने उसको बोला ये भी पौधा निकाल डालो क्योंकि ये अनवांटेड मतलब ये वीड्स है, अनवांटेड प्लांट्स है, वो दूसरे प्लांट्स को तकलीफ देगी. ही टोल्ड हिम टू अप्रूव द वीड्स केयरफुली मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस ऑफ द रूट वॉज लेफ्ट इन द सॉइल. लेकिन उसके पापा ने बताया कि देखो पूरे जड़ से निकालो, नहीं तो अगर रूट्स सॉइल में रह जाएंगे तो फिर से वो प्लांट वहाँ ग्रो हो सकता है, इसके लिए संभाल के पूरे उसको रूट से ही निकाल डालो. तो स्टूडेंट in here I will stop the lecture and rest of the lesson I will be explaining in another lecture. Okay, thank you.